میں ان تمام لوگوں کا ویلکم کرنا چاہتا ہوں جو آن لائن موجود ہیں، جن میں منزہ عمران ہیں فیصل آباد سے، رینو بالا ہیں انڈیا سے، اور راج کمار جی ہیں انڈیا سے، اور مسٹر مارون، برادر مارون، he is also joining us and he is online with us and God is going to bless him and we are going to listen a wonderful sermon from him today. Now I will request Brother Amjad if he can sing few songs for us, and we also want to welcome Brother Vishal from Malaysia. Brother ji ਆਇਆ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। दरख्वास्त करूंगा ब्रदर अमजद से कि वो हमारे लिए गीत गाएं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सिस्टर रीनो बाला। हालेलुया। हेलो, हालेलुया सिस्टर। बहुत चंगा लगा जी आया नु गीत सुनाओ। हाँ जैमसी दी, की हाल है, ठीक हो? हाँ जी हाँ जी वधिया। हाँ जी, चलो खुदा दी महिमा ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਓ। हाँ जी हाँ जी, आओ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਕੰਮਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਏ ਮਹਾਨ। ਕੰਮਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਏ ਮਹਾਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਕੰਮਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਏ ਮਹਾਨ। ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੰਬੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਏ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਏ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ। ਕੰਮਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਏ ਮਹਾਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਗ ਚ ਵੇਖਣ ਲਾਇਆ ਏ। ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਏ। ਜਮਾਂਦਰ ਲੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ। ਕੰਮਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਏ ਮਹਾਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਚੱਲੇ ਦੁੱਖ ਮਖੌਲ ਕਰਾਲੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਬਣਿਆ ਜਗ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਦੇਖ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠ ਨੂੰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਹਾਨ। ਕੰਮਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਏ ਮਹਾਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਦੀ ਇਹੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਬੜਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਦ ਪੁਰੀਏ ਤੋਂ ਭਜਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਲਿਖਾਨ। ਕੰਮਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਏ ਮਹਾਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
Hallelujah, hallelujah. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. We have also Iram Jackson from Faisalabad joining us today in this worship meeting. God bless. And God bless you, Pastor. सबको सलाम, सारे पास्टर Salam साहब ji. को सलाम. Thank you, Salam. Now we are requesting again Brother Amjad, if he can sing for us a hymn or a song, whatever God is asking him or guiding him to sing. Brother, are you listening to me? Sir, good evening. Good evening. थोड़ा सा तारफ भी करवाएं, अच्छा लगेगा. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We enjoyed. God bless you. And please sing one more hymn before we continue our meeting.
Hallelujah. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. We were really blessed to listen your wonderful song. God bless you more and more and keep you in his presence and safe and sound. Now we are going to sing another song, and I will request Pastor Lakwir Singh ji if he can sing for us one more song before we ask Brother Mervyn to bless us with the word of God. ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਾਂਗੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਜੀ, ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੱਸਦਾ ਅਸੀਂ
तेरी ही तारीफ जी तेरे तारे उत्ते सिर नूं झुकावांगे तेरे तारे उत्ते सिर नूं झुकावांगे रहांगे गवाह बन के जुम्मेवारियां जुम्मेवारियां पूरियां निभावांगे जुम्मेवारियां पूरियां निभावांगे रहांगे गवाह बन के जुम्मेवारियां रख यीशु सदा सानू अपना बना के कारे पाप साफ साडे तारे से तुखा के रख यीशु सदा सानू अपना बना के कारे पाप साफ साडे तारे से तुखा के सानू रख सदा सीने नाल ला के सानू रख सदा सीने नाल ला के रहांगे गवाह बन के जुम्मेवारियां जुम्मेवारियां पूरियां निभावांगे रहांगे गवाह बन के जुम्मेवारियां रहे सानू यीशु सदा तेरा ही ज़रूर जी नाम तेरे विच रहिए सदा मशहूर जी रहे सानू यीशु सदा तेरा ही ज़रूर जी नाम तेरे विच रहिए सदा मगरूर जी असी प्यार यीशु तेरे नाल पावांगे असी प्यार यीशु तेरे नाल पावांगे रहांगे गवाह बन के जुम्मेवारियां जुम्मेवारियां पूरियां निभावांगे जुम्मेवारियां पूरियां निभावांगे रहांगे गवाह बन के जुम्मेवारियां 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 हालेलुया थैंक यू पादरी साहब थैंक यू खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है एंड ऑफ कोर्स वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू और हमारे साथ आज बहुत सारे गॉस्पल सिंगर्स जो हैं वो जुड़े हैं और हम शर्जीला और नकाश असलम को वेलकम कहते हैं आज की इबादत में I just want to say that after a few minutes, we will be rejoining because 40 minutes time is expired, and when it is expired, we have to click on the same link, and we will be joining together, and then we will have ample time to listen some more hymns. And I will then request Brother Mervyn to share word of God with us. But bear with us. We have 4 or 5 minutes left. Now I just want to ask Sharjila and Nakash if they can sing a song for us. It will be great. तो आप शर्जीला और नकाश शुरू कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। जी आपकी भी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे।
तो आए हम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। मेरे दिल को तू अपने रूह से भर, मेरा दिल हो सिर्फ तेरा ही घर। मेरे दिल को तू अपने रूह से भर, मेरा दिल हो सिर्फ तेरा ही घर। तू हो मेरी निगाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। तू हो मेरी निगाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। पापियों को मैं लाऊं तेरे पास, अपनी खुशी पाए जो है उदास। पापियों को मैं लाऊं तेरे पास, अपनी खुशी पाए जो है उदास। वो भी हो जाए तेरे गवाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। वो भी हो जाए तेरे गवाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। मेरा तन मन बदन तेरे लिए, मेरा सारा जीवन तेरे लिए। मेरा तन मन बदन तेरे लिए, मेरा सारा जीवन तेरे लिए। तू हो मेरी निगाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। तू हो मेरी निगाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। आमीन आमीन। हाँ जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बहुत अच्छा लगा। अभी 1 मिनट के बाद जो है हम दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी लिंक को क्लिक करने के बाद हम फिर एक दूसरे से मिल सकेंगे। So I'm just informing all the people who do not know, this program is not going to stop after 1 minute. It is just a matter of limited time what we have got on a Zoom meeting. And after a few seconds, we will be rejoining by clicking on the same link. And God bless you, and we will listen some more songs, and then we will continue our program. God bless you all. Just wait, and we will be seeing very shortly to each other soon. God bless.
Hello. Hello. Nice to have you with us again, and we will continue our meeting. I just want to request Sharjila and Nakash to sing one more song. Hello. Hello, Sharjila. हेलो। हाँ, तो इस दौरान अगर हम आपकी मिसेस से रिक्वेस्ट करें हेलो। हेलो। हेलो भाई साहब, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी हेलो। जी जी सर ये गायन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जी, आपको भी सलाम। हम प्रस्तुत खुदावंद में आगे आपको बढ़ते बड़ी हुए बरकत एक दे। और गीत गाएंगे। जी हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 148। करो रब दी हुन वडियाई, करो रब दी हुन वडियाई, करो रब दी हुन वडियाई, सबे आसमानां दी उचियाई, सबे आसमानां दी उचियाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां मारन नारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हाँ जी, ज्वाइन नहीं किया आपने? सूरज चमकीले तारे, अच्छा, तो अभी मैं इस गीत के बाद आपको दोबारा बुलाऊंगा, तो वो गीत है ना आपका, सबे उसी हफ्ते सुनने हैं। पानी सारे, सबे हाँ, नथे पानी सारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म
آمین 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 آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت دے کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی تعریف میں اپنے لبوں کو کھولیں. اور ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ شرجیلا اور ناکاش جڑ چکے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے لیے ایک گیت گائیں. ایکچولی آج ہم نے شرجیلا اور ناکاش کو خاص طور پر کہ وہ اس پروگرام میں بطور گاسپل سنگر شرکت کریں. مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ شرجیلا اور ناکاش کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور کل خداوند نے اچھا اور عجیب کام اس شکل میں کیا ہے کہ ہم نے چلڈرن منسٹری بلکہ سنڈے اسکول کا آغاز کیا ہے ایک بھٹے پر، اور وہاں تقریباً 30-35 بچے جو تھے ان کے بال کٹوائے گئے، ان کو ٹوتھ برش استعمال کرنا سکھایا گیا اور ان کے لیے خریدا گیا، پھر ان کے لیے کھانے انتظام کیا گیا، پھر انہوں نے کھیلوں کا انتظام کیا. تو it was a wonderful event and I just want to appreciate their efforts. And they are people God has put a burden in their heart to start a Sunday school in a very slum area, basically very marginalized people. They are living on a clean factory. God bless them all and we appreciate their effort. Now I want to request them to sing my favorite song, Assi Rab de Bandeyan, Te Rab Sanu Pyar Karda Hai. It's our player to sing another song and we will continue our worship. Basically, we are waiting Pastor Thomas to join us because he is going to be our interpreter for Brother Marvin. So in the meantime, we will just listen some more hymns and songs before he joins us. God bless you. جی آپ سنائیں ہمیں وہ گیت. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ. ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ. ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਤੂੰ ਵਖਾਏ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ. ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ
हो गए जेते कदमी लग गए ने हाँ जेड़े कदमी लग गए ने साडे उजड़िया बागां नू यसू ने आण वसाया ए साडे उजड़िया बागां नू यसू ने आण वसाया ए ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ Hallelujah, hallelujah. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. It was really great to listen a wonderful song. We are men of God and God loves us all and unconditionally. That is the basic theme of this song. I just want to paraphrase it, rather interpret it, in English for Brother Marvin because he does not understand our language. But the theme of this song is that he is God, he loves his own people, and he is always kind and merciful to all of us. Now we have a player that Pastor Thomas, he has joined us and he is going to be interpreting a sermon which will be delivered by Brother Marvin. But before we go to sermon, I will just request Mrs. Tasim and her choir to sing one more hymn before we just ask Pastor Sarwar Maksud to pray for today's sermon. One more hymn, and then we will request Pastor Sarwar Maksud to pray for today's sermon. Heavenly Father, we are thankful to you for your kindness, for your goodness, for your love with us. And we are thankful you brought us, your servant among us, that he will preach your word and we will get trained and we will be able to serve more better for you. Heavenly Father, open your heaven on your servant. Bless him. He will bless the nation. He will bless us. Heavenly Father, we are thankful you are with us and lead us and preach us and bless us. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Now it's my pleasure and honor to invite Brother Marvin to share word of God, what God has put in his heart to share with us. And before he does, I will request him also to give a little intro of his so that we could know more and we could enjoy his sermon. God bless you. You have all the time, and if this program is stopped, it does not mean that we are not listening to you. We'll be rejoining, because we get 40 minutes maximum in Zoom meeting. And after 40 minutes, we have to click again and we join together. And we will be eagerly listening your sermon. God bless you. Thank you, everyone. आप सबका बहुत शुक्रिया. I'm from Singapore and I'm so excited. मैं बहुत खुश हूँ आज शाम के लिए. I've been to Pakistan 3 times already, 2018, 2019 and last year. और मैंने 3 दफा पहले भी पाकिस्तान में खुदा के कलाम की खिदमत की है.
I experience so much of God's presence over every time I come to Pakistan. I see miracles. I see God doing a great work in your nation. और जब भी मैं पाकिस्तान में खुदा के कलाम की खिदमत करता हूँ मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मैं हमेशा खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा पाकिस्तान में अपना जलाल ज़ाहिर करे. And last month I just came back from India, sharing into many places in all over India. Which city, which place you are taking name, please? India. Yeah, India. पिछले माह मैंने इंडिया में भी खुदा के कलाम की खिदमत की. I went to the south area in Tamil Nadu and the north east in West Bengal of India. मैं इंडिया के मगरबी बंगाल में और तमिलनाडु के और डिफरेंट में मैंने खुदा की खिदमत. So when I was many people in Pakistan is me go to people from India are praying for all. और जब मैं वहां पर था तो बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों ने मेरे लिए दुआ की. इंडिया में था तब बहुत सारे बहन भाइयों ने मेरे लिए दुआ की. Time I come to Pakistan, I got open doors and there are so many unbelievable miracles that God showed me over. और जब भी मैं पाकिस्तान में खुदा के कलाम की खिदमत करता हूँ खुदा बड़े अजीब काम अपनी कौम के जाहिर कर. So right now I'm going to share a word that I felt that God has a great purpose in every single one of you. और आज शाम हम खुदा के कलाम को सीखेंगे जो हम में से हर एक के लिए खुदा ने पेश किया है. Now let us all turn to the Bible. Let us all turn to Psalms 139. ज़बूर 139 खुदा के कलाम में हम देखेंगे. Psalms 139. Let us all read verse 13 to 16. Or verse which verse? 13 to 16. 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे. Do you want me to read in Urdu? Yes, read in Urdu so that everyone can understand. Yeah. Thank you. लिखा खुदा के कलाम में, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी. मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबोगरीब तौर से बना हूँ. तेरे काम हैरत अंगेज हैं. मेरा दिल उससे खूब जानता है, तो मेरा कल्ब तुझसे छुपा ना था. तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे जबकि एक भी वजूद में ना आया था. पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बायस बरकत हो. खुदा का शुक्र हो. Yes sir. Amen. Thank you very much. Imagine when we want to build a house. जब हम फर्ज करें जब हम घर बनाना चाहते हैं, I will imagine where the door will be. I will imagine where the window, the walls will be, and the foundation and the roof. तो जब हम घर बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हम एक फर्ज करते हैं कि घर की दरवाजा कहाँ पे होगा, घर की खिड़कियां कहाँ पे होंगी और उसकी बुनियाद कैसे बनानी है. तो ये सारी चीजें हम अपने ज़हन में रखते हैं जब हम घर बनाना चाहते हैं. You will start to imagine first, and then you start to create, and then you start to build the thing that you imagine. और आप इस तरतीब से काम करते हैं कि सबसे पहले आप उसके बारे में सोचते हैं कि मैंने ये चीज बनानी है और फिर उस तरतीब से बारी-बारी आप आगे बढ़ते हैं. So when we read the Psalms 139 verse 13, it says that God has a vision. God formed you, has a purpose and a vision before He created you. तो जब हम ज़बूर 139 पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर यही चीज सीख रहे हैं कि इससे पहले कि खुदा ने हमें बनाया, खुदा ने इससे पहले से हमारे लिए वो मंसूबे, वो प्लान तैयार कर रखे थे जो उसने हमारी जिंदगी से लेने थे.
So in verse 13, it illustrates God. He imagined about you, every single one of you, including me. He imagined how you're going to be, and then he created you. और यहाँ पे लिखा है जैसे कि क्योंकि मेरे दिल को तूने ही बनाया और मेरी माँ के पेट में तूने ही मुझे सूरत बख्शी। तो इससे पहले कि हम जमीन पर अपने वजूद में पैदा हुए, खुदा ने पहले से हमारे लिए चीजें तैयार कर रखी थी। And then when you realize that he formed you, every single part of you, your heart, your hand, your nose, your eyes, you start praising him. And verse 14 says, I will praise him and declare. तो 14वीं आयत में लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा और मैं तेरे कामों का बयान करूंगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से खुदा ने हमारे मुख्तलिफ अज़ाब को बनाया है, तो खुदा उसी तरतीब से हम उसकी शुक्रगुजारी भी कर सकते हैं कि खुदा ने कितना अच्छे अंदाज से हमें बनाया है। And in the same verse 14, it says that you are fearfully made. Say please sir again. In verse 14, it also says that you are fearfully made. और लिखा है कि तूने मुझे हैरत अंगेज तौर से बनाया है। Now you are not fearful, but you are fearfully made to be walk in victory. और खुदा ने हमें इस तौर से बनाया है ताकि हम डर में नहीं बल्कि फतह में जिंदगी बसर कर सकें। You were created for war. Yes, you were created in war of righteousness. और खुदावंद तूने हमें रास्ते के लिए उसने हमें क्या किया है, पैदा किया है। उसने हमें पैदा किया ताकि हम रास्तबाज बन सके। उसने हमें पैदा किया ताकि हम फतहमंद बन सके। At the same time, you are wonderfully made. That means in God's eye, you, every single one of you, including me, are beautiful in the eyes of God. तो इसका मतलब है कि चूंकि खुदा ने हमें अपनी मर्जी से तख्लीक किया है, लिहाजा खुदा ने हमें बड़ा खूबसूरती से बनाया है। हम खुदा की नजर में बड़े कीमती हैं। You will understand when you read this verse that you and me are very important and precious in the eyes of Jesus. और हम खुदावंद की नजर में कीमती हैं और खुदा ने हमें पोशीदगी में जब हम बन रहे थे तो खुदा ने तब भी हमसे प्यार किया। And in verse 15 it says that you and me were created in secret. In secret. और 15वीं आयत में जैसे लिखा है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था तो खुदावंद तूने ही मुझे सूरत बख्शी है। In your mother's womb, God created you in secret. And why? Because you were made for weapons of righteousness. तो खुदा ने आपको पोशीदगी में बनाया ताकि आप रास्तबाजी के हथियार बनकर जमीन पर जिंदगी बसर कर सके। Every part of your body is the footprint and the testimony of his goodness when he created all of us. और जब उसने हमें बनाया तो हमारी जिंदगी का हर एक हिस्सा जो है वो खुदा के जलाल के लिए, उसकी रजा के लिए होना चाहिए। And in the same verse in Genesis, from beginning, chapter 1, verse 17, it says that God created his image in us. और हम पैदाइश की किताब के पहले बाब से ही देखते हैं कि खुदा ने हमें अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया और उसने हमें इस तरीके से तख्लीक किया कि हम उसको जाहिर कर सके। He said, let us in our image, in the image of God, he created us. और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने वहां पे लिखा है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह बख्शी। And in the same chapter, Psalms 139, verse 16, he said, I saw substance in every single one of you, all of us. He sees only great things, potential, future in all of us. और ज़बूर 139 की 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद का कलाम सिखा रहा है कि खुदा ने हमारी बेतरतीब मादे को खुदा ने अपनी आंखों से देखा है। उसने हमारा मुस्तकबिल, हमारा माजी और हमारा हाल, हर एक चीज खुदा की नजर में आया है। Why is it important? It is because it doesn't matter where we come from, because in the eyes of God, you and me are called light of the world. याद रखें, हम किस हालत में हैं, किस मुकाम पर हैं, ये चीजें बेमानी है, क्योंकि खुदा की नजर में हम बहुत कीमती हैं और उसने हम में से हर एक से
बेइंतहा प्यार किया है। In Matthew chapter 5, Jesus said, "You are the light, salt and light of this world." और खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील के 5वें बाब में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कलीसिया को हमें कह रहे हैं, वो लोग जो पर ईमान रखते हैं, कि तुम लोग जमीन का नमक और जमीन का नूर हो। Jesus didn't say that you have to behave well to become light. He said, "You are light. You are the salt of the earth." तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आप लोग अच्छा बर्ताव रखेंगे तो फिर आप नूर बनेंगे, बल्कि उसने कहा कि आप दुनिया का नूर है, और जब आप नूर है तो नूर हमेशा तारीकी में चमकता है। In the same chapter, he says, if you put a basket, take off that basket, and if the salt in you loses its flavor, it's no use. Say please, sir. In the same chapter, he says that if you are the salt and the light, take off the basket and be the light I call you to be. वहां पर यह भी लिखा है, जब हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं, तो अगर हम नूर है तो नूर के ऊपर कोई ढक्कन, कोई कवर नहीं होना चाहिए, बल्कि नूर को ओपन होना चाहिए, ताकि उस नूर के वसीला से सब चीजें रोशनी को हासिल कर सके। Because when he says that, no matter where you are, you can be working in the farms, you can be working in the factory, that is where he calls you to be light, salt and light. तो याद रखें, चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी खेत में काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी किसी भी जिंदगी के किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं, आप खुदा के लिए आप खुदा का नूर है, आप खुदा के लोग हैं जिनके वसीले से। Because it doesn't matter whether you come from a rich family or a very simple family, the same powerful God is in you. To get the benefit of this, but I hope it didn't work. So वही खुदा जो किसी अमीर का है या किसी गरीब का है, वही हमारा खुदा है, और वो हमसे उतना ही प्यार करता है। So wherever you are called to be a blessing to wherever God has placed you. तो आप जिस जगह पर, जिस मुकाम पर हैं, आप किसी भी जगह पर खुदा ने आपको रखा हुआ है, उसी जगह पर खुदा ने आपको बरकत का एक ओहदा दे रखा है, आप दूसरों के लिए बरकत है। Let us all turn to Mark chapter 16. Let us all read verse 15, 16, 17, 18. तो मरकस की इंजील का 16वां बाब, मरकस की इंजील का 16वां बाब, और उसकी आखिरी कुछ आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। 15वीं, 16वीं, 17वीं आयत, मरकस की इंजील का आखिरी 16वां बाब। Yes sir. Do you want me to read in Urdu? Yes. 15, 16, 17, 18. Okay. All right sir. Thank you. So खुदावंद के कलाम में लिखा है, 15वीं आयत से खुदा का कलाम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हिलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन। Amen. In this part, the Great Commission, Jesus said, go out into the world, wherever, everywhere. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि दुनिया के तमाम कोनों में हर जगह पर जाकर हमें क्या करनी है, इंजील की मुनादी करनी है। The presence of God goes with the assignment that he has assigned us to. तो याद रखें, जहां पे जिस इलाके में भी हम खिदमत कर रहे होंगे, खुदा की हजूरी और उसकी कुव्वत भी हमारे साथ साथ होगी।
If you are working in your workplace, that is where the presence of God is. If you are a homemaker in your home, that is where the presence of God is. याद रखें, बेशक आप घर में हैं या किसी बाहर किसी फैक्ट्री में या किसी भी एरिया में काम करते हैं, तो जहां कहीं भी है, खुदा की हुजूरी वहीं पर आपके साथ है. He says that when you go, signs and wonders will follow. तो यहाँ पर लिखा है कि जब आप बाहर जाएंगे तो अजीब अजीब काम और निशान जो है वो आपके वसीला से जाहिर होंगे. He says that you will cast out demons, and then when you lay hands on the sick, they will get healed. यहाँ पर ये लिखा है कि आप बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे, और आप यीशु मसीह के नाम से बदरूहों को भी निकालेंगे. The signs and wonders are the evidence of God, miracles on the love that He loved the people out there. तो याद रखें, ये जो निशान और ये जो मोइज़ात है, ये निशान है इस बात का कि खुदा अभी भी अपनी कलीसिया से प्यार करता है. Amen. And in Luke 9, He sent out the 12 disciples. Luke chapter 9, He sent out the 12 disciples. और लूका की इंजील के 9वें बाब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा. He sent out 2 by 2, 6 groups to all over the place to preach the gospel, heal the sick, cast out demons. और उसने वहां पर 2-2 के ग्रुप के साथ अपने शागिर्दों को भेजा ताकि वो जाकर इंजील की मुनादी करें. When the disciples 2 by 2 they went out, it is their first time going out to share the kingdom of God and to heal the sick. और वहां पर खुदावंद ने उन्हें इख्तियार बख्शा कि जाओ बीमारों को शिफा दो, और खुदावंद ने उन्हें इख्तियार बख्शा. They were afraid because it is their first time, but they had faith and they just go. और ये पहली दफा था कि यीशु मसीह ने उनको किसी काम के लिए भेजा था, और उनके दिल में खौफ था कि ये कैसे हो पाएगा. And then in the same story, Jesus said, power and authority were given to them. और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद उन्हें सिखाते हैं, बताते हैं कि मैंने तुम्हें इख्तियार और क्या बख्शी है, कुव्वत बख्शी है. It is the assignment that God assigned in all of us. That's where the power and authority comes with. याद रखें, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए, उसकी खिदमत के लिए बुलाए जाते हैं, तो खुदावंद हमें कुव्वत और इख्तियार भी देता है. Yes, it is dangerous. Sometimes it is impossible. It is so difficult, especially in Pakistan, which is a Muslim country. तो पाकिस्तान जैसे एरिया में इस तरह से खिदमत करना कोई आसान नहीं है, लेकिन खुदा की कुदरत हमेशा उसके लोगों के वसीला से जाहिर होती है. But it is where God said, only be bold and courageous, and my presence will be with you wherever you go. लेकिन ये भी याद रखें कि ऐसे ही इलाकों के लिए खुदा की ये बात हमें सिखाई गई है कि हौसला रखें, हिम्मत करें, खुदावंद हमारे साथ है. So in Singapore, it is the same. We cannot share the gospel to the Muslims. तो जो सिंगापुर में अभी पाकिस्तान जैसी हालात है, हम वहां पर भी मुस्लिम्स के साथ इंजील की मुनादी नहीं कर सकते. I will get arrested by the police. और अगर हम इंजील की मुनादी उनके साथ करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी. And it is the same, and it is a very serious crime in many countries, including yours. और बहुत सारे मुमालिक में ये एक बड़ा सख्त जुर्म है जब आप इंजील की मुनादी करते हैं. Let me share with you a story when I came to Pakistan in 2019. और 2019 में जब मैं पाकिस्तान आया तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या तजुर्बा हुआ. After I visited many places, sharing in many churches, we went to the north. और बहुत सारे चर्चेस में कलाम की खिदमत के बाद बहुत सारे एरियाज में हम गए, और उसके बाद हम शिमाली इलाका जात की तरफ गए. Me and my friends, we went on a mountain trip, not mission trip, not church trip, but mountain trip to Hunza area. और हुंजा की जो वादी है, उस एरिया में हम अपने दोस्तों के साथ एक तफरीही
नीयत से उस तरफ गए, कोई मिशन ट्रिप नहीं था, जस्ट एक तफरीही सफर था। And we were there just to see the beautiful mountains, a beautiful river in Hunza Valley. और हुंजा की जो वादी है वहां पर जो खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत वादियां हैं, हम वो देखने के लिए वहां पर गए थे। So in the night, after we went Hunza Valley, we go back to our hostel, our hotel. We were having dinner with the hotel owner, the mountain trekker, and the driver. और जब हम सारा दिन सैर व तफरीह के बाद वापस आए, तो हमारा जो डिनर था, शाम का खाना था, होटल के मालिक के साथ था, और उसके अलावा वो जो ड्राइवर था वो भी हमारे साथ था। हम सब मिलकर खाना खा रहे थे। And I'm sure you know that these people, they have hunting guns, they hunt yak for food, and they are people from the north, and they are very, very private people. और जो शुमाली इलाका जात के लोग हैं कि बंदूकें होती हैं जिनसे वो शिकार करते हैं, और वो इस बात के लिए काफी मशहूर भी है। And then God told me, say that one of them, he have a very bad pain. Can you pray for him? He has a very bad backache, back pain. Okay. तो खुदावंद के रूह ने भाई को बताया कि इनमें से एक बंदे की कमर में शदीद दर्द रहती है, तो आप इनके लिए क्या करें, दुआ करें। And my heart was so scared because God is telling me, go and pray for him, heal him. और मैं और मेरे दोस्त जो थे, हम बड़े अपसेट थे, क्योंकि ये आसान नहीं था कि हम उनके लिए इस तरह से आजादी से दुआ करने की बात करते। Now, how many of you know that sharing the gospel in the north is not safe at all, and it's not wise to do that? Yeah. वहां पर शुमाली इलाका जात में अंजील की मुनादी करना कोई महफूज चीज नहीं है। वहां पर काफी मसाइल हो जाते हैं, और इसकी वजह से भाई को जब ये खुदा ने तहरीक दी, तो इनके लिए भी ये परेशानी की बात थी। So nevertheless, I asked him, do you have a pain in your back? तो फिर इन्होंने उससे पूछा कि क्या आपकी कमर में दर्द है? And then he said, yes, I have very bad pain. Why? Who are you? Are you a doctor? तो उन्होंने इससे पूछा कि आप, उसने जब हाँ में जवाब दिया, तो फिर उसने पूछा कि क्या आप डॉक्टर हैं? आपको कैसे पता चला? I say, no, I'm not a doctor, but my father is a doctor. तो इन्होंने आगे से बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैं बाप जो है वो एक डॉक्टर है। So my father is actually Jesus. और मेरा जो बाप है वो आसमान पर है। So he said, okay. Then I said, can I pray for you? और फिर उसने कहा कि ठीक है, और फिर इन्होंने उसे उसके लिए दुआ करना शुरू की। So my heart was so scared. Brother, sorry to interrupt you. Yeah. Brother, sorry to interrupt.
Yes, please go ahead. We are ready to listen to your sermon. Okay. So when I prayed for him, he got healed. और जब मैंने उसके लिए दुआ की तो खुदा ने उसको शिफा बख्शी. And then after that, the driver said, I also have a back pain. Can you pray for me? तो जब वो ठीक हो गया तो जो ड्राइवर था साथ उसने कहा कि क्या आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे, मुझे भी कमर में दर्द रहता है. And then I started to pray, and then he got healed. और फिर मैंने उसके लिए दुआ की. जब मैंने उसके लिए दुआ की तो खुदा ने उसे भी शिफा बख्शी. And then after that, my mountain tracker, he said, I have a bad migraine every night. Can you just lay hands on me and pray? और फिर इनके साथ जो तीसरा बंदा था उस इलाके का, तो उसने फिर भी अपने सर में कहा कि मेरे भी सर में मिग्रेन की दर्द रहती है, तो आप क्या मेरे लिए भी दुआ करेंगे? And then I prayed for him, and then he said he will tell me tomorrow morning, then he will know whether he have the pain again. और जब इन्होंने उसके लिए दुआ की तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको कल सुबह बताऊंगा कि क्या मैं शिफा पा गया हूं या नहीं. And then one by one they got healed, and then they started to praise Jesus. और इस तरह बारी-बारी उनके लिए मैंने दुआ की और इस तरह से यीशु की तारीफ और उसका जलाल जाहिर हुआ. Okay, I try to show you the video. और यहाँ पर ये वीडियो भी इन्होंने बनाई हुई है, आप सब इसको देख सकते हैं. Okay. Hallelujah. Yeshua. Hallelujah. Yeshua, heal you, man. Yeah. Wow. Thank you. Yeah. Thank you, Yeshua. You can hear, can see? या और Yeah, देखिए okay. आपने सुना कि किस तरह से वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं. And they were praising Jesus. और वो यीशु की तारीफ कर रहे हैं. And this is, I didn't preach a word. I only pray for them, and they are praising Jesus. और मैंने उनके लिए अभी तक एक लफ्ज भी बुनियादी नहीं की थी, पहले जस्ट उनके लिए दुआ की थी और देखिए किस तरह से खुदा की तारीफ हो रही है. And one of the elder, the hotel owner, he's one of the elder. He said that tomorrow, can you come to my village and pray for every one of them? और वहां पर एक शख्स ने उनको कहा कि कल क्या आप मेरे गांव में आकर मेरे गांव के लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं. And then my friend and myself, we got so excited. We said, sure, we will come with you. और जो इनके साथ इनके दोस्त थे और इन्होंने मिलकर कहा कि जी जरूर, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे. And then we say, okay, tomorrow we will go to your village and then we will pray for your friends and family. तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, कल हम आपके साथ चलेंगे और आपके दोस्तों के लिए और आपके खानदान के लिए दुआ करेंगे. And then he says that my wife is also in pain. Will you come and pray for my wife? Sorry, there was little sound. I couldn't hear you. Okay. So one of them said that, could you pray for my wife? Because my wife is also having a lot of pain. Could you pray for her also? And I said, yes, I will come. उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी मिसेस के लिए भी दुआ करेंगे, उनके भी बहुत ज्यादा पेट दर्द रहती है. तो उन्होंने कहा जी जरूर, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे. Okay, this is one of the video. Test. Wait, I try to. God bless the leg that you will walk. New kneecap. In the name of Yeshua. Okay, test. And then she got healed. It's okay. Hey, my wife is okay, then I pray you. Okay. Hallelujah. देखिए वहाँ पर Thank you, Yeshua. उनकी जो बीवी है वो बिल्कुल खुदा ने उसको सेहतयाब किया है और वो खुदा की तारीफ कर रही है. And one by one, he brought us to village, house to house, to pray for people in every house, and we pray for their children, pray for their wife, pray for many people. और इस तरह बारी-बारी हम मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाकर उनके लिए दुआ करते रहे और खुदा अपना जलाल जाहिर करता रहा. I didn't plan this, but God opened a door when we boldly step into something that we think is impossible. तो याद रखें ये इतना आसान काम नहीं था, ये बड़ा मुश्किल काम था और इन्होंने कोई ऐसा प्लान भी नहीं बनाया हुआ था. ये खुदा ने इनके लिए एक दरवाजा खोला कि ये उस इलाके में खुदा का जलाल जाहिर कर सके.
And the most amazing part that I never imagined was to see the village chief, the Muslim village chief, praying for his own people. और मैंने मतलब इस तरह से कभी देखा नहीं था कि देहात में जाकर इस तरह से दुआ करना विलेज के लोगों के लिए. He was saying, thank you, Yeshua, and praying for a very, very sick boy. और वो यीशु मसीह की तारीफ कर रहे थे कि यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो. उनका एक बेटा बड़ा बीमार था. I was so shocked. I was so amazed. और खुदा ने शिफा बख्श, मैं बड़ा हैरान हो गया और मुझे बड़ी इससे हैरत हुई कि खुदा ने अपना जलाल किस एरिया में जाहिर किया है. So let me show you the video. Thank you, Yeshua. 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 Thank you, thank you, Thank you, Yeshua. Thank you. So the boy is a handicapped boy. He cannot walk. But this man, he had faith. He's a Muslim, but he had faith. He prayed. And he said, thank you, Yeshua, over the boy. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो एक माजूर बच्चा है और उस बच्चे के लिए इसका बाप जो है वो यीशु मसीह की शुक्रगुजारी कर रहा है कि यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो. For me, I think the Hunza area in Skadu and all those north area is very dangerous. But God, with God, all things is possible. और स्कर्दू और उसके जो सारे इर्द गिर्द के एरियाज हैं वो काफी खतरनाक है, लेकिन खुदा के साथ सब चीजें मुमकिन है. उन एरियाज में भी हम खुदा के कलाम की खिदमत कर सके. Last year in 2022 October, I was in Skadu. Where were you? Skadu. Yeah. Okay. अक्टूबर 2022 में मैं स्कर्दू में था. I was in Skadu and God opened a door for me to share in a funeral into these people, another group in Skadu, share in a funeral, preach in a funeral. और स्कर्दू में खुदा ने मुझे एक इलाका में अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया. Actually, maybe you can hear behind me, there are two mosques and they are their azan. So that's why maybe when I ask you to say again, kindly do that. It's okay. Yes. You can no carry problem. on. I'll try my best to catch you. No problem. Yeah. You're doing a wonderful job. Thank you. Yeah. Okay. So carry on. I was in Skadu and I was sharing in a funeral. Those Muslim people, those bearded people, in their funeral. तो वहां पर जो मुस्लिम लोग थे उनके एक जनाजा हो रहा था वहां पर, और मैंने उस जनाजे में जाकर खुदा के कलाम को मुनादी की. They invited me to share the love of God in their funeral. और उन्होंने मुझे दावत दी मैं उनके जनाजे में खुदा की मोहब्बत को बयान कर सकूं. I was so afraid because I had never shared in a funeral. I mean, I shared in churches, I shared in the streets, but not in a funeral. And this is a Muslim funeral. और मैंने कभी भी जनाजों में खुदा के कलाम की मुनादी नहीं की थी. चर्चेज में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे तो जरूर की थी, लेकिन जनाजा पे कभी नहीं की थी. और जनाजा भी कोई मसीही जनाजा नहीं था, एक मुस्लिम जनाजा था. But when God opened the door, I just go, I just obey and just do what I can. I feel that God wants me to share. और जब खुदा ने दरवाजा खोला तो मैंने फिर खुदा की बात मानी और मैंने फिर खुदा के कलाम को वहां पर सिखाया. So I was sharing about God's love. God loved them and God is with them. Even though we are of different faith, but God is with them. तो फिर मैंने उनको खुदा के प्यार और उसकी मोहब्बत के बारे में सिखाया. मैंने कहा बेशक हमारे अकीदे मुख्तलिफ है, लेकिन एक ही खुदा है और वो हम सबसे प्यार करता है. And they were saying, Amen to everything I said. और जितनी भी बातें मैंने उनके दरमियान बयान की,
हर बात पे उन्होंने आमीन आमीन करके इजहार यकजहती का मुजाहरा किया। We may not need to preach the gospel, but when these things happen, we just show them love. We show them the love of God. We pray for them. और याद रखें कि अंजील की मुनादी का एक बेहतरीन तरीका ये है कि हम ऐसे लोगों में खुदा के प्यार का इजहार करें कि खुदा इन लोगों से क्या करता है, प्यार करता है। Because in the Quran, we all know that the Quran says that Jesus will be coming back to save all of us. और जिस तरह के हम मुस्लिम माशरे में रहते हैं, हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाई ये कीदा रखते हैं कि यीशु मसीह आसमान से वापस आएगा और लोगों को बचाएगा। So when I do that, I'm only just introducing who Jesus is. And then it's up to them. Maybe when they sleep, they will encounter Jesus in a dream. और फिर मैंने जब यीशु मसीह को उनके सामने रखा कि यीशु मसीह कौन है, और बाज़ का ऐसे होता है कि यीशु मसीह ख्वाबों और रोया के जरिए से ऐसे लोगों पर जाहिर भी होते हैं। Because where God assign you, there is power and authority. याद रखें, आप जिस एरिया में जिस भी इलाका में खुदा की खिदमत कर रहे हैं, जो भी आपको खुदा ने खिदमत दी है, उस खिदमत के साथ साथ खुदा ने आपको कुव्वत और इख्तियार भी बख्शा है। I'm asking you that when we step out, we show love to our neighbors. We show love to the people of different faith. याद रखें, जब आप अपने काम की जगह पर जाएं या बाहर निकलते हैं, तो आप खुदा की मोहब्बत दूसरों लोगों तक पहुंचाएं अपने अमाल से, अपने अल्फाज से। Now I'm in Singapore. I work in the construction site. और मैं सिंगापुर में एक जो बिल्डिंग्स बनाने का जो काम है, उस अदारे में काम करता हूँ। And a lot of my workers are from Bangladesh, and Bangladesh are also Muslims. और मेरे पास जो बहुत सारे जो मजदूर हैं, वो बांग्लादेश से हैं, और वो बांग्लादेश में भी ज्यादातर मुसलमान बादी है। So when they work in the construction site, they have this pain, that pain, neck pain, head pain, leg pain, all kinds of pain, because it is a very, very tough work. तो जो ये मजदूरी का काम होता है, ये काफी ज्यादा थकावट वाला होता है, इसलिए जो मजदूर है, कभी उनके सर में दर्द है, कभी उनके कंधों में दर्द है, कभी उनके टांगों में दर्द है, तो इस तरह से मामला चलते रहते हैं। So in all of those opportunities, I know when they are feeling pain and all that, I ask them, can I pray for you? तो ये खुदा मेरे लिए दरवाजे खोलता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि चूंकि आपके दर्द है, तो क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ? And that's where the miracle comes. That's where I see miracles, and they experience Jesus healing them. और ये वो मुकाम होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पर खुदा अपने मौत को जाहिर करता है, और ये वो मुकाम होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर खुदा अपना जलाल जाहिर करता है और खुदा मौज़े करता है। So I have many photos, but maybe next time I will show you. और इस तरह में भी जब दोबारा मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूं, तो जिस तरह मैंने पहले वीडियोस दिखाई हैं, शायद इस तरह की मैं दोबारा आपको दिखा सकूं। So right now, because I want to tell you that every single one of you are very precious, and you are not called to lay back, but God has called you for victory. याद रखें, आप सबको जिनको खुदा ने बुलाया है, खुदा ने आपको फतह के लिए बुलाया है, जीतने के लिए बुलाया है, आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, ना कि पीछे रहने के लिए। Revival of Pakistan belongs to the Pakistani people. याद रखें कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो पाकिस्तानी चर्चेस से उनका ताल्लुक है, और खुदा पाकिस्तान के कलीसिया को पाकिस्तान के बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बरकत के लिए इस्तेमाल करेगा। You have many people that are suffering. You have people in the slave side. You have people working in the bricks. You have people all over that are suffering. But you can be the light, and you can say that, can I pray for you, and bring light into dark. याद रखें, आपके इर्द-गिर्द बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ तरीके से अजियत का शिकार है, कुछ ईंटों के भट्टों पे काम कर रहे हैं, कुछ किसी की गुलामी में है, कुछ किसी और तरह से तकलीफ का शिकार है। आप दुनिया का नूर है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। And there are sometimes that when I pray, there are no miracles, but they will always say, thank you for praying, pray for us some more.
और याद रखें कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो जरूर आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और वो आपसे और दुआ की भी दरख्वास्त करते हैं. For me, it's a privilege to be able to pray for people. It's a privilege to share Jesus with all of them. और मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात होती है, बरकत की बात होती है कि मैं लोगों के लिए दुआ कर सकता हूँ और यीशु की मोहब्बत दूसरों के दिलों में बांट सकता हूँ. So right now, I want to close already. और अब मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ. I'm going to pray right now. और मैं दुआ करूंगा. I'm going to pray that God use you in a special way. और मैं दुआ करूंगा कि खुदा आपको एक खास तरीके से इस्तेमाल करे. Some of you maybe you work in the school, you work in your security company, or you work in the factory, but wherever God put you, that is the place where you will see miracles, and that's where you will share the gospel. आप में से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे होंगे, कोई स्कूल में, कोई फैक्ट्री में, लेकिन जिस जगह पर भी आप हैं, खुदा वहां पर अपना जलाल जाहिर करना चाहता है और आप वहां पर खुदा के लिए जरूर इस्तेमाल हो सकते हैं. If you want to see your life change, if you want to see the miracles of God in your life, you got to step up. याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वसीला से दुनिया में खुदा का नूर चमके, आपकी जिंदगी से यीशु की गवाही जाहिर हो, तो फिर आपको कदम बढ़ाना होगा और लोगों के लिए दुआ करना होगी. My last trip, I went to Kuwait. Even in Kuwait, God brought a Kuwaiti lady for me to pray. मेरा जो आखिरी ट्रिप है वो कुवैत का था और फिर खुदा ने कुवैत में भी एक औरत के लिए मुझे तैयार किया और मैं उस औरत के लिए दुआ कर सका. It is something so impossible because Kuwaiti woman doesn't talk to a man. और कुवैत का जो माहौल है वो तकरीबन पाकिस्तान जैसा ही है और कुवैत के जो लोग औरतें हैं वो आदमियों से इतनी बातें नहीं करते. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. Yeah, could you see that? Yeah. Okay, yes. Yeah. If you're ready for an assignment that God sending you to the most impossible thing, God will open door for you. याद रखें, अगर खुदा आपको मुस्लिम या किसी भी कौम के लिए बुला रहा है तो खुदा आपको अपनी कुव्वत और इख्तियार के साथ सपोर्ट भी करेगा. So I got the offer for that Kuwaiti lady. और मुझे खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं एक कुवैती खातून के लिए दुआ कर सका. It was not in the church, it was outside in the middle of the street. और ये चर्च में दुआ नहीं हो रही थी बल्कि ये एक सड़क में एक गली में दुआ हो रही थी. So I'm just sharing with you that if you believe God is a miracle and a tremendous powerful God, God will show up in the most impossible situation. याद रखें, आप अपने लिए दुआ किया करें कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करे, खुदावंद आपके लिए दरवाजे खोलेगा और आपको खुदा एक अजीब तरीके से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा. Like Psalms 139 say, you are fearfully and wonderfully made. और याद रखें, ज़बूर 139 कहता है कि आपको अजीब और हैरत अंगेज तौर से बनाया गया है. Every single one of you were made for victory. आप में से हर एक जो मौजूद है वो फतह के लिए खुदा ने उसे बनाया है. खुदा आपके वसीला से अपने जलाल जाहिर करता है. You know what? That's why whenever I come to Pakistan, India, or whichever country God brought me, I'm always so excited to see what God will do to every place that I got open door for me. तो याद रखें, जब मैं पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क में जाता हूँ तो मैं ईमान रखता हूँ, इत्तेकाद रखता हूँ कि खुदा मेरे वसीला से अजीब काम और अपना जलाल जाहिर करेगा. On tomorrow, when I go back to work, I'm also excited to see what God is going to do. Are you excited tomorrow? Because God is going to use you. याद रखें, कल ये कह रहे हैं कि जब मैं अपने काम की जगह पर जाऊंगा तो मैं एक्साइटेड हूँ, मैं खुश हूँ कि खुदा कल मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा. तो क्या आप भी जब किसी अपने रोजाना की रूटीन पे काम पे जाते हैं या कहीं भी, तो क्या आप खुश होते हैं कि खुदा आपके लिए कोई दरवाजा खुलेगा, कोई जिंदगी आपके लिए तैयार करेगा? Every day is an exciting day. So I'm going to pray now. और हर रोज जो मेरे लिए है
वो बड़ा एक्साइटमेंट का और खुशी का होता है। और मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे ही खुदा के जलाल के लिए अपने आप को तैयार रखा करें। मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। So I'm going to pray now. In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से I pray that every one of us will step up boldly and be courageous to where you have put us. और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम में से हर एक जो इस कलीसिया को, इस कलाम को सुन रहा है, खुदावंद वो दिलेर हो जाए और दिलेरी से तेरी खिदमत के लिए अपने कदमों को उठाए। I thank you for your presence. I thank you for your anointing where you have put me. और खुदावंद मैं तेरी हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। I thank you that you have blessed me with so many things that I sometimes don't see. और खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद बहुत सारे ऐसे मौकों के लिए जो तूने मुझे बख्शे हैं कि खुदावंद मैं तेरी गवाही शेयर कर सकता हूँ। There are so many needs that I need, and I know there's so many things that are so impossible. But you are the God of possibilities. खुदावंद मुझे पता है कि बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नामुमकिन नजर आती हैं, लेकिन खुदावंद तू हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है जो हर काम करने में कादिर है। You are an extraordinary God with an extraordinary miracle. खुदावंद तू एक गैर मामूली खुदा है और गैर मामूली मौजे करने की कुव्वत रखता है। And I thank you for your love over all of us, that your love has always covered us. और खुदावंद मैं तेरे प्यार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरा प्यार हमेशा हमें घेर लेता है। And I thank you for your Holy Spirit that you gave us to do the great work. और खुदावंद मैं तेरे पाक रूह के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तूने हमें बख्शा है ताकि हम बड़े-बड़े काम कर सकें। And in Psalms chapter 22, और ज़बूर 22 में when we praise God, God is enthroned. When we start praising you, when we sing a song, when we worship you, your presence come. You are enthroned in the presence of your people. और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने लोगों की हम्द और सना पे तख्त नशीं होता है। जब हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद तेरी मौजूदगी हमारे दरमियान कायम हो जाती है। I thank you for your presence every time when we worship you. खुदावंद जब भी हम तेरी तारीफ करते हैं हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। I thank you for the finance that you have blessed me and my family. और खुदावंद जो वसाइल जो रुपए पैसा तूने मुझे और मेरे खानदान को बख्शा है उसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। And I thank you for health. I right now declare that everyone here right now to be from the sole of feet to the crown head, sole of feet to be fully healed, fully restored in Jesus' name. और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त तेरे हुजूरी में मौजूद हैं। खुदावंद जिस किसी भी बहन या भाई की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दुआ करते हैं कि वो शिफा पाए। So I pray for divine health over every single one. I pray for divine health over every single one in your family. और खुदावंद खानदान में किसी भी शख्स को खुदावंद अगर कोई तकलीफ है तो यीशु के नाम से वो शिफा पाए। And I pray for the anointing when you lay hands on the sick, they will get healed. और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि ये सब लोग इनको तू मसा बख्श, जब ये किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ करे तो खुदावंद तेरा मसा के वसीला से बंधन जो टूटे। I pray that your life will start to change and see the adventures of God in your life. और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद जिंदगियां बदलें, सोचें बदलें और ख्याल बदलें। In Jesus' name. Thank you. Amen. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। आमीन। Hallelujah. 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 Thank you. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Brother, thank you very much. It was really a very powerful message. May God keep using you mightily for the glory, for His glory and for the advancement of His kingdom. We were really blessed to have you and listen to a wonderful so much. message by you. God bless you. And now it is the time to listen some testimonies. And as we have Sharjila, Khalil and Nakash Aslam, we will request them to share their testimony
how God put a burden in their heart to start a Sunday school in a very slum area. अब मैं शर्जीला खलील से और असलम नकाश असलम से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी गवाही को हम सब के साथ शेयर करें कि खुदावंद ने कैसे उनके दिल में ये बोझ डाला कि वो भट्टा पर संडे स्कूल शुरू करें, गरीब बच्चों के लिए एक अच्छा, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी तालीम के लिए कुछ काम कर सकें। तो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी गवाही को शेयर करें और एक गीत भी सुनाएं, और इसके बाद नजमा और क्वायर से भी हम एक गीत सुनेंगे। जी पास्टर जी, दरअसल ना नकाश की ना तबीयत नहीं सही है, आपसे बोला था कि वो ठीक नहीं है, तो वो तो अब ना मेडिसिन लेने गया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, तो मैं ही हूँ, तो मैं अपनी गवाही शेयर कर देती हूँ। जी जी जरूर। जी, तो मेरी गवाही ये है कि सबसे पहले तो मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा बाप ने मुझे इस लायक समझा कि खुदा बाप जो है मुझे अपनी खिदमत में लेके आए हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस घराना से वो अपने खादम चुनता है, उस घराने पर उसे तरस आता है। तो ये तो खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है कि खुदा बाप ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना है, और ये बोझ मेरे दिल में खुदा बाप ने ऐसे डाला है कि क्योंकि हम भी एक प्रोसेस से ना गुजरे हैं, ये जो गुर्बत है ना, इससे हम भी गुजरे हैं। तो मेरे ख्याल से खुदा बाप ने इसी वसीला से मेरे दिल में इस बात को डाला कि क्योंकि खुदा ने हमारे लिए वसाइल मुमकिन किए, खुदा बाप हमारा रास्ता बन गए, हमारे वसाइल बन गए, हमारी बरकतें बन गई। तो खुदा बाप ने हमें लिए तैयार किया है कि जो कुछ खुदा बाप ने जो उन बच्चों के पास जो वसाइल नहीं है ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी ये वसाइल सारे दिए जाए, उन्हें एक अच्छी जिंदगी दी जाए, उन्हें एक अच्छी तालीम दी जाए, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम जब भी विजिट पे जाते हैं, मैं और नकाश, तो हम यही वहां पे फील करते हैं कि खुदा बाप जी, और उनके लिए बरकत चाहते हैं कि खुदा बाप उन्हें कसरत से बरकत दे और उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चों के दिल में या उनके जहन में इस स्टेज में हम जो डालेंगे ना, बूढ़ा होने तक उनके साथ वही रहेगा। तो जो कुछ अब खुदा की बातें उनके दिल में डाल देंगे ना इस वक्त, वही उनके साथ हमेशा रहनी है। तो अगर हम अच्छी बातें उनके अंदर डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर अच्छा फल लाएंगे बड़े होकर। तो मैं ये समझती हूँ कि बाइबल मुकद्दस से बढ़कर अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर इसकी तालीम उन्हें दी आमीन जाए आमीन या इसके बारे आमीन। में उनकी रहनुमाई की जाए, तो ये तो सबसे बेहतर है और सबसे बड़ी बात है। तो खुदा बाप की शुक्रगुजारी है कि खुदा बाप इस्तेमाल भी कर रहा है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ मैं इस बात के लिए भी। तो खुदा बाप से दरखास्त भी है और आप जैसे अच्छे लोगों से भी कि आप हमारे लिए मजीद दुआओं में हमें याद रखें कि खुदा बाप जो है ना वो हमें कसरत से और इस्तेमाल करे, और जहाँ पर हमारी जरूरत है हम वहां पर भी इस्तेमाल हो सके। हाँ जी, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ताली बजाकर जो है वो शर्जीला खलील और नकाश असलम की हौसला अफजाई करें और अच्छे काम में इनको दाद दें। खुदा इनको मजीद कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। बहुत सारी तालियों के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाँ, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना मिसेस तरसीम अरशाद से कि वो हमें एक गीत सुनाएं। चलो, कुछ आवाज आ रही? हेलो, हाँ जी। हाँ, आए हम खुदावंद की प्रस्तश में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है।
बिने रुके काम हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ ना तू कमजोरी हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो ना तू कमजोरी हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है वो जितने कमजोर हैं नया बन पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने कमजोर हैं नया बन पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो है जिंदा खुदा वो है सबका खुदा तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा वो है जिंदा खुदा वो है सबका खुदा तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा ना वो तुझसे जुदा जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपके इस गीत से यकीनन हम सबको बड़ी बरकत मिली है। अब now it is our time for intercessory prayers and I will be requesting Pastor Server Maqsood if he is available online to pray. And if somebody has a special request, please let us know. We can pray for him or her for any problem in the life, whatever she or he is facing. And it is our faith that he is going to remove all the obstacles from the path of everybody. He is a mighty God. He can do anything. He can turn impossible things into possible things, and he can always do miraculous things. And one thing more, he is a wonderful God. He always chooses the weakest person to show his glory and his might. He can use any one of us to show his power, because our Lord is a living Lord. He always listens our prayers and supplications. We have a boldness through his Son that we can come to him anytime. We are not bound by the limits of time. He always welcomes us, and we can ask whatever we want from him, and he has the power to grant us everything, whatever is good for our life. God bless you all. If Pastor Server Maqsood is on the line, it's a pleasure to ask him to pray. If not, now I will just pray for all those people who have requested us that their name should be lifted up before Lord, and we shall pray for them one by one. Let's pray.
And I will just pray in Urdu so that most of the people who are on the line, they can understand and they can also join in the prayer. God bless you all. कदूस कदूस अफवाज लश्करों के खुदावन जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरे नाम की तारीफ, मदह सराई और सताइश अब्दुल्लाबाद होती रहे। आज तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम दिलेरी के साथ तेरे पाक तख्त के सामने पेश हो सके। खुदा बाप, तूने हमें आज तक जिंदों की जमीन पर रखा, हर नेमत से माला माल किया, और इन तमाम बख्शिशों और रहमतों के लिए खुदा बाप तेरा दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर इन अजीज़ों की आमद के लिए जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, तूने मुमकिन किया कि हम सब मिलकर इस ज़ूम मीटिंग के ज़रिए तेरे नाम को जलाल दे सकें, तेरी हम्द कर सकें, तेरे पाक कलाम से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अब दुआ करता हूँ उन तमाम चीज़ों के लिए जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके नामों को तेरे हजूर याद किया जाए। खुदा बाप, सबसे पहले मैं डॉक्टर सलीम अख्तर हजूर याद करता हूँ, तेरा खादम, तेरा बंदा एक अरसा से अलील है, बल्कि वो अजियत में मुब्तला है। दरख्वास्त करता हूँ कि तू उसको छू, उसको बरकत दे, उसको उठा खड़ा कर, उसको शफा याब कर और तौफीक दे कि वो जोश और जज्बे के साथ तेरी खिदमत में हम तन मसरूफ रहे। तमाम कमजोरी को, नकाहत को, मायूसी को, परेशानी को खुदा बाप अभी और इसी वक्त खत्म कर दे। इसी तरह से सल्ताज को तेरे हजूर याद करता हूँ। खुदा बाप, तू उसकी बीमारी से वाकिफ है, तू उसकी परेशानी को जानता है। बड़े ईमान के साथ तेरे बेटे का पाक खून उस पर छिड़क देता हूँ, इस ईमान के साथ कि जब और जहां भी तेरे बेटे का खून आ जाता है, वहां बीमारी, तंगदस्ती, परेशानी और अबलीस की हर चाल खत्म हो जाती है। खुदा बाप, अपने बेटे को उठा खड़ा कर, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसकी तमाम नकाहत को ताकत में बदल दे और अपने बेटे को इस काबिल करके वो तंदुरुस्त होकर तेरे नाम की तारीफ कर सके और तेरे नाम की गवाही दे सके। इसी तरह तेरी बेटी बीना को तेरे हजूर याद करता हूँ। तू उसकी तमाम तकलीफों से वाकिफ है और तू जानता है कि वो तेरी खिदमत करने के लिए खुदा बाप जज्बा रखती है। शैतान उस पर पूरी शिद्दत के साथ हमलावर है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो तेरे इख्तियार में ना हो। तूने हमें इख्तियार दिया है कि हम तेरी ताकत से शैतानी ताकतों पर गलबा हासिल कर सकते हैं। उसी ताकत को, उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उसकी तमाम बीमारी को झिड़क देता हूँ और तो इसे इल्तिजा करता हूँ कि अपनी बंदी को शफा याब कर, उसकी कमजोरी में तू उसका मददगार हो, उसकी तमाम माली, जिस्मानी और रूहानी जरूरतों को अपने खजाना से पूरा कर, उसको बड़ी बरकत दे और जो इलाज मुआवजा हो रहा है उसमें अपने बेटे का पाक खून शामिल कर दे और बख्श दे कि जैसे जैसे वो खून
भावे बिच समुंदर पैण जा सारे पर्वते रुड़ के भावे बिच समुंदर पैण जा रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह कौमाया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां कौमाया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां धरती सब पिघल गई रब ने जदों कीती सदा धरती सब पिघल गई रब ने जदों कीती सदा रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह जो यहोवा लश्करां दा आपी साडे नाल है जो यहोवा लश्करां दा आपी साडे नाल है जो खुदाया कुर्बदा है सो साडी है पनाह जो खुदाया कुर्बदा है सो साडी है पनाह रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह ते मदद ओ सतियां विच जेड़ा साडा है खुदा ते मदद ओ सतियां विच जेड़ा साडा है खुदा रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह इसलिए कुछ डर नहीं बामे ज़मीन जावे उलट इसलिए कुछ डर नहीं बामे ज़मीन जावे उलट सारे पर्वते रुड़ के भावे बिच समुंदर पैण जा सारे पर्वते रुड़ के भावे